Good morning, students, and again welcome to our economics class. We will continue our chapter. It's price elasticity of demand. In earlier class, we study what is the meaning of price elasticity of demand, and we also study its different degrees. We study what is perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, highly elastic demand, less elastic demand, and uniquely elastic demand. In today's class, we study how we can measurement the price elasticity of demand, and then what are the factors which affect the price elasticity of demand. हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट कैसे करेंगे और दूसरा जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे इफेक्ट करते हैं. हाउ वी कैन मेजरमेंट इट इज मेजरमेंट बाय द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. How you can measure it? Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price of the commodity, or EP equal delta Q upon delta P multiply P upon Q. It means P means initial price, delta P means change in price, Q means initial demand, and delta Q means change in demand. By this formula, we can measure the price elasticity of demand, or when percentage change in quantity demanded and percentage change in price is given, we use the earlier formula. By it we can find out the price elasticity of demand. It comes between 0 to infinite. One thing more important, when we find price elasticity of demand, it always comes in the negative forms, because it shows inverse relation between price and quantity demanded, but when we measure it, we ignore the negative sign. Okay. Now we study what are the different factors which affect the price elasticity of demand. अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो क्या फैक्टर्स हैं जिसको इफेक्ट करते हैं, पर उसके पहले एक चीज हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईली इलास्टिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस इलास्टिक. हाईली इलास्टिक डिमांड मींस more change in percentage demand than the percentage change in price of the commodity. It means demand में ज्यादा change होगा और price में कम change होगा in percentage terms in the case of highly elastic demand. Or when we say the less elastic demand, in the case of less elastic demand, more change in price of the commodity and less change in demand of the commodity. तो जहां भी टर्म आएगा हाईली इलास्टिक, आपको क्लियर होना चाहिए कि डिमांड में चेंज ज्यादा हो रहा है, प्राइस में चेंज कम होगा. जब टर्म आता है लेस इलास्टिक, और आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर प्राइस में चेंज ज्यादा होगा और डिमांड में चेंज कम होगा. एंड वी मेजर दिस चेंजेस ओनली इन परसेंटेज टर्म्स और प्रोपोर्शनल टर्म्स. द फर्स्ट फैक्टर व्हिच अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज द नेचर ऑफ द कमोडिटी. According to the nature of the commodity, we can assume there are two types of commodities: necessities of life and luxurious goods. If we study the luxurious goods, in the case of luxurious goods, price elasticity of demand is highly elastic. Why? Because percentage change in quantity demanded is always more than the percentage change in price of the commodity. तो डिमांड में चेंज होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस. क्योंकि दो रीजन से, तो लग्जरी गुड्स जो भी एयर कंडीशनर से, कार है, आपके कॉस्टली स्मार्टफोन से, ऑल दीज आर द लग्जरी गुड्स. इन लग्जरी गुड्स के केस में क्या होगा, एक तो हमारे पास इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, हम इनके बिना रह सकते हैं, और दूसरा इनकी प्राइसेस ज्यादा होती है. तो इसमें क्या होता है, हमेशा जो डिमांड में चेंज है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. According to nature, there is second type of goods. These are necessities. Or in the case of necessities, price elasticity of demand is less elastic. It means price में change ज़्यादा होता है और demand में change कम होता है. It's like you can say that our school textbook, हमारे को textbook purchase करना ही पड़ेगा अगर हमारे को study करना है तो. Similar way में school uniform. In the similar way, can say medicines, wheat, salt. All these are the necessities of life. So in the case of these necessities, we find price elasticity of demand is always inelastic or less elastic. Second is availability of substitutes. What are substitute goods? Substitute goods are those goods which are used in place of each other and they give us same level of satisfaction. अगर किसी commodity के बहुत सारे substitutes available हैं तो उसकी डिमांड क्या होगा, हाईली इलास्टिक. और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो डिमांड क्या होगा हमारे लिए, लेस इलास्टिक. अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं
तो डिमांड क्या होगा, हाईली इलास्टिक। जैसे अब एक पेन आप ले रहे हैं, अब पेन के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। पेन मान लीजिए 10 रुपीज का आता है, अब उसकी प्राइस बढ़ के 12 रुपए हो गई, 12 रुपीज हो गया, तो आपने क्या करा, फिर दूसरी कंपनी का पेन परचेज कर लिया। क्यों, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। बट मान लीजिए कोई कमोडिटी ऐसी इसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, जैसे मान लीजिए पेट्रोल, आपको अपनी बाइक में या कार में आपकी पेट्रोल कार है, आपको कार में पेट्रोल डलाना है, अब प्राइस बढ़ गया, तब हम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ला सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो जिन कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ज्यादा अवेलेबल हैं, उनकी डिमांड क्या होगा, हाईली इलास्टिक, और जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है हमारे लिए क्या होगा, वो लेस इलास्टिक, क्योंकि उनकी हमें डिमांड करनी ही पड़ेगी, हम उसकी डिमांड को इग्नोर नहीं कर सकते। The third is income level. Price elasticity of demand also affect with the income level of the consumer. अगर हम इनकम लेवल की बात करें तो हम दो कंडीशंस लेते हैं, वेरी रिच और वेरी पुअर। एक को ले सकते हैं मिडिल क्लास, और मान लीजिए कोई पर्सन वेरी रिच या वेरी पुअर, बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा गरीब है, तो दोनों कंडीशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा लेस इलास्टिक। बहुत ज्यादा अमीर है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, रिच है काफी, तो प्राइस में चेंज होने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वो अप्रोक्सीमेट सेम कमोडिटी परचेज कर रहा है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा पुअर है तो क्या कर रहा है, सिर्फ लाइफ सेविंग या बहुत ज्यादा नेसेसिटीज उसके लिए उन्हीं को परचेज कर रहा है। अगर प्राइस बढ़ेगा तब भी डिमांड करेगा, वो कहीं से भी पैसा लाएगा बट वो डिमांड करेगा। तो दोनों के केस में क्या होगा हमारे लिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक। और जो मिडिल इनकम ग्रुप पीपल है उनके लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या होगा, हाईली इलास्टिक, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी जो डिमांड में चेंज होगा वो ज्यादा होगा। आपको सिंपली याद रखना, वेरी रिच और वेरी पुअर के लिए लेस इलास्टिक, और जो मिडिल इनकम ग्रुप पीपल है उनके लिए हाईली इलास्टिक। इन द सिमिलर वे लेवल ऑफ प्राइस, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड क्या होगा, हाईली इलास्टिक। तो जैसे कि मान लीजिए एयर कंडीशनर है, कार है, स्मार्ट टेलीविजन से, लैपटॉप से, अब इनकी प्राइस ज्यादा है हमारे लिए, तो इनकी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिमांड में कंपैरेटिवली ज्यादा चेंज होगा। मान लीजिए कार आती है फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की कार है, अब उसकी प्राइस में 10% चेंज हुआ तो हमारे लिए चेंज हो रहा है 80,000, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मान लीजिए सॉल्ट का पैकेट आता है 10 रुपीज का, अब उसकी प्राइस में 10% चेंज हुआ, 1 रुपए का चेंज हुआ, हम क्या उसको इग्नोर कर देते। तो जब प्राइस लेवल बहुत ज्यादा है तो डिमांड क्या होगा, हाईली इलास्टिक, बिकॉज वी कांट इग्नोर द चेंज इन प्राइस। बट व्हेन प्राइस लेवल इज वेरी लो वी कैन इग्नोर इट, सो इट्स डिमांड इज लेस इलास्टिक। तो अगर प्राइसेस ज्यादा हैं तो डिमांड क्या होगा हमारे लिए, हाईली इलास्टिक, और अगर प्राइसेस कम हैं तो डिमांड क्या होगा हमारे लिए, लेस इलास्टिक। नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी डिमांड क्या होगा हमारे लिए, हाईली इलास्टिक। अगर पोस्टपोन हम नहीं कर सकते तो डिमांड लेस इलास्टिक। जैसे मान लीजिए मेडिसिन से हमारे को कोई डिजीज है या हमारे को मान लो फिट नहीं है, हमारे को किसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, उसी समय लेंगे, तो उसकी डिमांड क्या होगा, लेस इलास्टिक। प्राइस ज्यादा हो गया तभी हम डिमांड करेंगे। पर इसके अपोजिट कोई कमोडिटी ऐसी है कि जिसका डिमांड आपके लिए नेसेसिटी नहीं है। मान लीजिए आपको आपके घर के लिए स्मार्ट टीवी लेना है या आपके लिए स्मार्टफोन लेना है, आपके लिए फेस्टिवल सीजन आने वाला है, दीपावली आने वाली है, कोई स्कीम आती है, कोई गिफ्ट मिलता है, तब ले लेंगे, 1 महीने बाद ले लेंगे, हम उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगा, हाईली इलास्टिक। पर जैसे मान लीजिए मेडिसिन से, मान लीजिए आपको आपके बर्थडे के लिए केक लेना है, थोड़ा बोलोगे यार केक 3 दिन बाद अच्छा आएगा तब लूंगा, सेम डे पे चाहिए हमारे को। तो जिन कमोडिटी की डिमांड हमारे लिए नेसेसिटीज है उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, वो क्या होगा, लेस इलास्टिक, और जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं हाईली इलास्टिक। इन द सिमिलर वे नंबर ऑफ यूजेस, अब बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे नंबर ऑफ यूजेस है, मल्टीपल यूजेस है, और कुछ गुड्स ऐसे उनका सिंगल यूज है। समझ लीजिए पेट्रोल है, उसका सिंगल यूज है आपके लिए, आपकी बाइक के कार में पेट्रोल डला रहे हैं। मान लीजिए मिल्क है, दूध है, उसके मल्टीपल यूज है। अब जैसे मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसके नंबर ऑफ यूजेस को कम कर देगा। आप मिल्क से चाय भी बना रहे हैं, आपके घर में कर्ड दही भी बन रहा है, और जितने डिफरेंट आइटम्स बन सकते हैं मिल्क से बन रहे हैं। तो जैसे प्राइस बढ़ा तो हमने क्या करा, मिल्क के यूजेस को कम कर दिया, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, हाईली इलास्टिक। हमें ये जो नहीं कर रहे कि मिल्क नेसेसिटी है, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मिल्क के मल्टीपल यूजेस। पर इसके अपोजिट जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, अब पेट्रोल का सिंगल यूज है, आपको खाली आपकी बाइक चलानी है, आपको कार चलाना है, जो भी। अब जैसे प्राइस बढ़ेगा आप उसकी डिमांड को रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल यूज है। तो जिन कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस हैं, एक से ज्यादा यूज हैं, उनकी डिमांड क्या होगा, हाईली इलास्टिक,
और जिनके सिंगल यूज हैं या लेस यूज हैं उनकी डिमांड क्या होगा, लेस इलास्टिक। In the similar way, share in total expenditure, just like similar to the price of the commodity. एक commodity पर हम हमारी total income का कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कोई commodity ऐसी होती है इस पर हमारी income का बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कंघा है, बटन है, नीडल, सुई है। हम कभी-कभी डिमांड करते हैं commodities की, तो इनकी जो प्राइस में चेंज होता है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता ही नहीं। क्यों? हम बहुत कम डिमांड करते हैं। सोल्ट है, बहुत कम डिमांड हम करते हैं, पर जिन पर हमारे इनकम का बहुत बड़ा पार्ट हम खर्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है या फिर अगर मिल्क है, आप इनकम का ज्यादा पार्ट खर्च कर रहे हैं, तो जहां पर हम टोटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा पार्ट शेयर कर रहे हैं उसकी डिमांड क्या होगा हमारे लिए, हाईली इलास्टिक, क्योंकि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। और जहां पर हमारे इनकम का बहुत कम पार्ट हम खर्च कर रहे हैं तो डिमांड क्या होगा हमारे लिए, लेस इलास्टिक। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। यस, टाइम पीरियड आल्सो अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल शॉर्ट टाइम पीरियड है। अब शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमारी डिमांड को हम चेंज नहीं कर सकते प्राइस में चेंज होने पर भी, तो हमारे लिए क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस इलास्टिक। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ गए और आपके घर में जितने लाइट्स लग रही है उसको एलईडी में, या आप उसको जितने अप्लायंसेस आपके पास, इस तरह से आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे। वो कब पॉसिबल होगा, लॉन्ग टर्म में। तो जो शॉर्ट टर्म में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस इलास्टिक, और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हाईली इलास्टिक। क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम डिमांड को एडजस्ट नहीं कर सकते प्राइस के अकॉर्डिंग, जबकि लॉन्ग टर्म में हम कर सकते हैं। लास्ट, हैबिट्स। अब कंज्यूमर की क्या हैबिट्स, अगर कंज्यूमर किसी कमोडिटी के हैबिचुअल है, मान लीजिए कोई पर्सन स्मोकिंग करता है और हैबिचुअल है, अब प्राइस बढ़ेगा तभी वो डिमांड करेगा। बहुत सारे लोग टोबैको जर्दा खाते हैं, आपने देखा होगा, और प्राइस बढ़ेगा तभी वो डिमांड करेगा। लॉकडाउन में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लोगों ने कहीं से चोरी छुपे मिला तब भी ले रहे हैं और ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ दे आर हैबिचुअल। बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं, टी, चाय। मोस्टली लोगों के घर में चाय बनती है, अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है तब भी लोग डिमांड कर रहे हैं। क्यों? वो हैबिचुअल है। अगर हम किसी कमोडिटी के लिए हैबिचुअल हैं तो उसकी डिमांड क्या होगा, लेस इलास्टिक। अगर नॉन हैबिचुअल हैं तो डिमांड क्या होगा हमारे लिए, हाईली इलास्टिक। So all these are the factors which affect the price elasticity of demand, and we can also measure the price elasticity of demand with a given formula. I will send notes of all these and some numerical question to you tomorrow. Okay, thank you.